بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ چل یہاں سے، فروا کتوں کے منہ نہیں لگتے، ہیر نے رحمان کو دیکھتے ہی کہا۔ کتا کاٹ بھی لیتا ہے ہیر، تم نے بے عزتی کی ہے، میری سکون سے جینے تو نہیں دوں گے تمہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے سکون سے رہتی ہو تم۔ چودھری عبد الرحمان ہے نام، آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، رحمان نے اسے جاتے دیکھ کر پیچھے سے کہا تو ہیر پیچھے مڑی۔ بہت برا کیا تم نے ہیر، وہ جوتا مار کر تمہاری پوری یونیورسٹی کے سامنے وہ بے عزتی کروں گا کہ گھر سے نہیں نکلو گی تم۔ چل ہیر، فروا اسے لیے چلی گئی، مگر ہیر پریشان ہو گئی تھی، وہ واقعی میں غصے میں تھا۔ فروا کچھ ہو نہ جائے، مجھے گھر جانا ہے۔ ہیر رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، رو کیوں رہی ہے؟ ہیر یہ صرف کہہ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اگر اس نے کچھ کیا تو ہم شاہزین سے اس کی مار لگوائیں گے۔ نہیں فرما، مجھے گھر جانا ہے، بس اچھا کھانا کھا لو، چل کر، ہم ویسے بھی تو آج رات نکل رہے ہیں، چل آنسو صاف کر اور کھانا کھا میرے ساتھ چل کر۔ ہیر نے آنسو صاف کیا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے چلی گئی۔ پورا گروپ نیچے چٹائی بچھائے بیٹھا تھا، ہیر اور فروا ثانیہ کے ساتھ بیٹھ گئی جو فون پر لگی ہوئی تھی۔ ارے آؤ آؤ مہارانیوں، کہاں تھی اب تک؟ ثانیہ نے فون رکھتے ہی وہ کہا۔ ہم بس آج لیٹ سے اٹھی اس لیے دیر ہو گئی۔ احان کہاں ہے؟ فروا نے مسکرا کر اسے تانا دیا۔ احان وہ کون ہے؟ ثانیہ نے منہ ہاتھوں سے چھپا کر کہا۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، فروا ہنسی۔ ارے دال ہی کالی ہے تو دماغ مت لگا، ثانیہ ہنس پڑی۔ ہیر سیریس بیٹھی تھی جبکہ فروا نے رحمان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آج ہم نے سوچا کھلی ہوا میں ناشتہ ہو جائے، کیسا لگا آئیڈیا؟ ثانیہ نے ہیر سے کہا جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ صحیح ہے، ہیر نے بے رخی سے کہا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ثانیہ نے فروا سے پوچھا۔ اس کا شہزادہ نظر نہیں آیا، اسے اس لیے مر رہی ہے، فروا نے کہہ لگایا تو ہیر نے اسے دھکا دیا اور تینوں ہنس پڑی۔ ہیر 2 منٹ بعد سنو گی؟ فرمان نے ہیر کو بلایا اور ہیر اٹھی۔ یہاں نہیں، کچھ دکھانا ہے، چلو۔ فرمان اس کا ہاتھ پکڑے ایک طرف چل پڑا۔ کیا دکھانا ہے؟ ہیر نے چلتے چلتے پوچھا۔ سامنے سے شاہزین، احان اور فارس آ رہے تھے، ہیر کی نظر شاہ پر پڑی پر وہ نظر انداز کرتا ہوا ساتھ سے گزر گیا۔ کیا ہوا؟ چلو نا، فرمان نے اس کے ہاتھ کو ذرا سا کھینچا کیونکہ وہ شاہ کو دیکھتے دیکھتے رک گئی تھی۔ او ہاں، ہیر چونکی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ فرمان اسے ایک پارک میں لے آیا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ واو بیوٹیفل، ہیر مسکرانے لگی۔ اچھا لگا تمہیں؟ فرمان نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت پیارا ہے، پر یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ فرمان نے ایک ریڈ روز ہیر کی طرف بڑھا دیا۔ ارے واہ، ہیر نے مسکراتے ہوئے روز لے لیا۔ اپنے اس بھولے سے پاگل سے کزن کا پرپوزل قبول کرو، کیا میری ہم سفر بنو گی؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ہیر حیران ہو کر رہ گئی تھی۔ جواب دو ہیر، میں ویٹ کر رہا ہوں، مگر یہ ڈیسیجن ہم کیسے، اور امی بابا سب ہو جائے گا تمہاری ہاں کے بعد؟ فرمان مسکرایا۔ ہیر بری طرح کنفیوز ہو گئی تھی، وہ ہاتھ بڑھا رہی تھی جب اس کے دل نے اسے روک لیا۔ کیوں ہیر، یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمان جیسا لڑکا تمہیں پھر نہیں ملے گا، کتنا خیال رکھتا ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاں کر دوں، امی کو بھی اچھا لگے گا۔ ہیر نے یہی سوچ کر فرمان کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا۔ فرمان نے اس کے ہاتھ پر ہونٹ رکھے اور ایک یونیک سی رنگ اس کی فنگر میں ڈال دی۔ پیار کی منگنی تو ہو گئی، اب دوسری منگنی سب کے سامنے کروں گا۔ فرمان مسکراتے ہوئے اٹھا، ہیر ذرا سی مسکرائی۔ چلیے اب چلتے ہیں ورنہ سب سوچیں گے بھاگ گئے کہیں، فرمان مسکراتے ہوئے بولا۔ اوئے ہوئے، اکیلے اکیلے، فرمان نے کہہ لگایا۔ پیچھے فارس، احان، شاہ اور ثانیہ انہیں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ہیر مسکرائی۔ شاہ کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا، وہ مٹھی بند کیے کبھی یہاں دیکھتا تو کبھی وہاں۔ فرمان بھائیو، اوہ سوری جیجا جی، اب ٹریٹ دینی پڑے گی آپ کو، ثانیہ نے ہنس کر کہا۔ ٹریٹ ضرور ملے گی، پر منگنی کے دن، فرمان نے ہیر کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہاتھ پکڑنے پر شاہ نے فرمان کی طرف دیکھا۔ اور منگنی کا ارادہ کب ہے آپ کا؟ فرمان نے سوال کیا۔ اسی ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ، فرمان نے ہیر کی طرف دیکھا اور کہا۔ چلو جی، گڈ ہو گیا، ہماری سنگل کڑی اب منگل ہو گئی ہے۔ ثانیہ نے فروا کے ساتھ مل کر تالی بجائی۔ ہیر مسکرائی۔ اب کھانا بھی کھا لو، اس کے بعد تھوڑا سا گھوم پھر لیتے ہیں اور پھر واپس جانا ہے۔ گڈ فارس، اچھا یاد دلایا، میں تو ناشتہ ہی بھول گئی تھی۔ خوشی سے فروا ہنسی۔ سبھی واپس آئے اور آ کر ناشتہ کرنے لگے۔ ہیر کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ تو جیجا جی کھلائیں گے، فروا نے اسے اداس دیکھ کر کہا۔ بدتمیز ہے ایک نمبر کی، ہیر چڑھ پڑی۔ چلو ہم کھلا دیتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ فرمان نے چمچ ہیر کی طرف بڑھایا۔ شاہ فارس کے ساتھ بیٹھا فرمان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا جو اسے جلانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ارے مجھے بھی ایسے ہی کھانا ہے، ثانیہ نے کہہ لگایا۔ احان بھائی، اسے آپ کھلائیں، فروا نے ہنستے ہوئے کہا۔ احان نے اپنا چمچ ہی پھینک دیا، ثانیہ نے ناک سکوڑا۔ ہیر ہنسی اور فرمان کے ہاتھ سے چمچ لے لیا اور خود کھانے لگی۔ شرما رہی ہے، یہ دیکھ فروا، کوئی مجھ سے پوچھتا میں تو تم چمچ بھی کھا جاتی۔
अहान ने सानिया के बाद कंटिन्यू करते हुए कहकर गया, ही सानिया फीकी फीकी हंसी। अच्छा मेरा प्लान सुनो, एक मूवी हो जाए आज जाने से पहले, फरवा ने कहा। कैसी मूवी? हीर ने पूछा। हॉरर मूवी, फरवा ने सानिया के कानों में उंगलियां डालकर कहा। क्या बोला? ओए मुझे सुनाई नहीं दिया, सानिया उसका हाथ बटाकर बोली। ना मुझे नहीं देखनी, मुझे डर लगता है, हीर ने दांत पीसकर कहा। हॉरर मूवी बोला क्या? मैं नहीं देखूंगी, सानिया खड़ी हो गई। ओए बैठ, रोमांटिक मूवी कहाँ है? मैंने फरवा ने उसे खींच कर बैठाया। कुछ नहीं होता हीर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फरमान ने हीर का हाथ थामते हुए कहा। शाहजहान गुस्से से उठा और चला गया। अरे शाहजहान भाई, फारस उठकर उसके पीछे चला गया। उसे क्या हुआ? सानिया ने पीछे देखकर कहा। कोई काम याद आ गया होगा, फरवा ने कंधे उचकाए। शाहजहान भाई क्या हो गया है? फारस ने उसके साथ चलते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे नहीं देखनी कोई मूवी, शाहजहान ने बेरुखी से बोला। अरे भाई सभी देखेंगे, आप नहीं देखेंगे तो हमें लगेगा कि आप डरते हैं। मुझे नहीं देखनी, शाहजहान कहकर आगे चला गया। भाई आपको आना पड़ेगा, देख रहा फारस पीछे से पुकारता हुआ रहा। फारस कुछ देर बाद वापस जाकर बाकियों के साथ बैठ गया। ये खुशखबरी दूं? फारस ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ क्या? सानिया और फरवा ने यक वक्त कहा। प्रिंसिपल से परमिशन ले ली है, हम कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे, रात को मूवी पक्की। वाह मज़ा आएगा। फरवा खुशी से उसे गले लगाने लगी पर सबको देखकर रह गई। तो टिकट्स बुक कर दूं थिएटर की? फारस ने उठते हुए पूछा। हाँ कर दूं, अहान भी खड़ा हो गया। हम दोनों आते हैं, टिकट्स बुक करके दोनों साथ चले गए। हीर आजा, हम थोड़ी वॉक कर ले, फरवा ने उठकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हीर हाथ पकड़कर उठी और सानिया भी उठ गई। भाई आपको कोई इतराज़ तो नहीं अगर हम आपकी मंगेतर को अपने साथ ले जाएं? सानिया फरमान से बोली। नहीं नहीं ले जाएं आप, फरमान मुस्कुराते हुए उठा और फ़ोन उठाए चला गया। फरवा, हीर और सानिया तीनों घूमने फिरने लगी। मगरिब का वक्त था जब फारस और अहान ने हीर फरवा का दरवाज़ा बजाया। फरवा ने दरवाज़ा खोला तो फारस, अहान और सानिया तैयार खड़े थे। चलो जल्दी से, टाइम होने वाला है, फारस ने घड़ी दिखाते हुए कहा। हीर चल दी। हाँ हम तैयार हैं। फरमान और शाह कहाँ हैं? फरवा ने हीर को बुलाकर कहा। फरमान आ रहा है पीछे और शाहजहान भाई को मैं बुलाता हूँ, फारस कहकर शाहजहान के पास चला गया। शाहजहान उस वक्त बेड पर लेटा टांगे लटकाए आंखों के पट खोले छत को देख रहा था। अरे भाई क्या बोर हो रहे हो? चलो ना, टाइम पास हो जाएगा। मैंने आपकी टिकट भी बुक कर दी है, फारस ने दरवाज़ा खोलकर कहा। मुझे नहीं जाना, जाओ तुम, वो बगैर देखे बोला। आप चल रहे हैं, उठें जल्दी, फारस ने उसे ज़बरदस्ती उठाया। अरे कहा ना नहीं जाना, शाहजहान ने अपना बाजू वापस खींचा। मुझे पता है आपको क्या मसला है, फारस ने उसके साथ बैठकर मुस्कुराते हुए कहा। शाहजहान जल्दी से उठ गया। हीर और आपका क्या चल रहा है? फारस ने कहकर कहा। बदतमीज़ी कर रहे हो अब तुम, शाहजहान फर्जी गुस्सा करने लगा। अरे अल्लाह माफ़ करे भाई, जो देखा है वही कह रहा हूँ, पर मैं आपके साथ हूँ, आप चाहे लाख छुपाएं, मुझे सब दिखाई देता है। मैं भी आखिर फरवा से मोहब्बत करता हूँ, अंदाज़ा तो मुझे भी है। ऐसा कुछ नहीं है, बेहतर होगा तुम ये सब जहन से निकाल दो, शाह ने वॉच उठाकर पहनते हुए कहा। अच्छा कभी मदद चाहिए तो फारस हाजिर है भाई, और घड़ी पहनने का मतलब आप चल रहे हैं? शाहजहान ने इतना ही कहा। थैंक्स भाई, फारस मुस्कुराकर उठा और दोनों बाहर चले गए जहाँ सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। फरमान शाह को देखकर मुंह मोड़ चुका था। चलें बाहर, टैक्सी रोक ली है मैंने, अहान ने अंदर आकर सबको मुखातब किया। चलो हीर, फरमान ने हीर का हाथ पकड़ा। यार ये फरमान कितना नोटिक करता है, बार बार हाथ पकड़ता है, सानिया ने अहान से कहा। मुझे भी कुछ खास नहीं लगता, पर दफ़ा करो, हमें क्या हीर की वजह से चुप हैं, वरना उस जैसे कि हमारे ग्रुप में कोई जगह नहीं है, अहान ने जवाब दिया। चलते चलते हीर का हाथ शाह के हाथ से लगा। हीर ने शाह की तरफ देखा पर शाह आगे बढ़ गया बगैर उसे देखे। चूँकि लोग ज़्यादा थे इसलिए 2 टैक्सी बुक कर ली। चलो आप मर्ज़ी से बैठो सब, अहान ने कहा। फरमान हीर के साथ बैठ गया। फरवा ने सानिया की तरफ देखा और सानिया ने फरवा की तरफ। अहान फरमान के साथ बैठ गया। शाहजहान भाई आप आगे बैठ जाएं, फारस ने शाह से कहा। हीर ने भी शाह की तरफ देखा जो दूसरी टैक्सी में बैठ रहा था। अहान तू आगे चला जा, यहाँ सानिया को बिठा ले, मैं फरवा और शाह एक साथ आ जाएंगे। अहान उठकर आगे बैठ गया। फारस, फरवा और शाह एक ही टैक्सी में बैठ गए। शाहजहान कोई प्रॉब्लम है ना? मैं कल से नोटिस कर रही हूँ तुम्हें, फरवा ने टैक्सी में बैठकर सबसे पहले शाह से सवाल किया। हाँ आप शाहजहान भाई हमें बताएंगे, सब यहाँ कोई नहीं इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बैठने को कहा ताकि हम शाहजहान भाई से पूछ सके। फारस ने बात शुरू की। अपने काम से काम रखो, फरवा, शाहजहान उखड़ कर बोला। ओए तुम्हें अच्छे से जानते हैं फारस और मैं, तुम ना ज़्यादा सीरियस मत हुआ करो, अच्छे से पता है कितना नरम दिल है तुम्हारा। फरवा ने शाह को डांटा। तुम क्यों पीछे पड़ रही हो? मेरे शाहजहान मुंह फुला बैठा था। ओके, परसों तुमने हीर को रास्ते में अकेला छोड़ दिया, इतने सख्त हो तुम? शाह, फरवा ने फारस को चुप रहने का इशारा करते शाह से पूछा। हाँ छोड़ दिया तो? शाह सीरियस होकर बोला। और हीर बारिश में भीगी, उसे जुकाम हो गया, तुम क्यों छींक रहे हो?
कल से फरवा ने फारस को क्या नहीं मारी, तुम्हारा दिमाग खराब है। शाह मुंह फेर गया था। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी के बाहर तुम घंटा जानबूझकर किस खुशी में भीगे रहे? फारस ने कहा। क्या बकवास है ये? शाह गुस्से से बोला। सब दिखाई देता है शाह, तुम जितना जल्दी बता दो हीर को अच्छा होगा, वरना वो फरमान कब से तुम दोनों बकवास कर रहे हो। अच्छे से जानते हो मुझे नफरत है उस लड़की से, क्यों जज कर रहे हो? मुझे नफरत है, मुझे हीर से। शाह का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। ओके भाई, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। सॉरी फारस, फरवा को चुप करा कर कहा, जो बोलने को तैयार थी। मजीद कुछ मत कहना, गुस्से में है उस वक्त। फारस ने फरवा के कान में सरगोशी की। फरमान मंगनी कर लेगा, फिर ये और गुस्सा करेगा। समझा तो रही हूँ कि हीर को बता दे, फिर गुस्से आएंगे उसे। फरवा ने मुंह बनाकर कहा। छोड़ो यार, इग्नोर करो, आप कुछ मत कहना, हम आपस में ना लड़ बैठे। कार थिएटर के सामने रुकी और सिपी नीचे उतरे। शाह गुस्से में आगे बढ़ गया, बाकी सब पीछे आ रहे थे। फरमान भाई, ऐसा भी क्या है जो हीर का हाथ नहीं छोड़ रहे आप? सानिया ने सच होकर कहा। बस ना मैं साया बने फिर रहा हूँ अपनी हीर के साथ। जी, सानिया मुंह बनाते हुए बोली और आगे बढ़ गई। यार, इतना चिपकने की क्या ज़रूरत है? भला हम कौन सा खा रहे हैं हीर को जो ये पकड़े फिर रहा है? फरवा ने फारस से कहा। छोड़ो, कहा ना हमारा कोई वास्ता नहीं है अब। जब शाह ने ही कह दिया, हाँ, अगर वो कहता हीर से प्यार करता है तो इस फरमान को 1 मिनट में ही हीर से हटा देता मैं। यार, मूवी रोमांटिक ही है ना, यहाँ हमारे अलावा और कोई क्यों नहीं है? सानिया ने आहान का कॉलर खींचा और वो गुस्से से बोली। अरे क्यों दिमाग चाट रही हो? हॉरर भी हुई तो कौन सा मर जाऊंगी? आहान ने कॉलर छुड़ाया। मैं 1 नंबर की डरपोक हूँ, तुम्हें पता है, मैं मार डालूंगी तुम्हें अगर मैं डरी। सानिया ने मुंह फेर कर कहा। सदके जाऊँ, मुझे पकड़ लेना जब डर लगे। आहान ने क्या कर लगाया। तुम्हारा गला पकड़ूंगी और मज़ीद डर लगा तो दबा दूंगी। सानिया ने उसे उंगली दिखाते हुए धमकी दी। हाँ तौबा। आहान हंसता हुआ सीट पर बैठ गया और सानिया उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। शाहजहान और फारस एक साथ बैठे थे। फारस के साथ फरवा थी। बैठो ना हीर, फरमान ने हीर से कहा, जो काफ़ी टाइम से खड़ी थी। हाँ बस बैठ रही हूँ। हीर उसके साथ बैठ गई। मूवी शुरू ही हुई थी कि सानिया ने चिंखें मारनी शुरू कर दी। आहान उसे डरते हुए के देख कहका लगाता और सानिया उसे धक्के देती और मुंह पर हाथ रख देती, कभी सर छुपा लेती, कभी रोती। हीर कोई ना डरावना सीन आने पर यहाँ वहाँ देखने लगती, जबकि फरवा और फारस बड़े मज़े से देखकर मुस्कुरा रहे थे। शाहजहान भी देख रहा था। जो भी हो, मज़ा बहुत आ रहा है, क्यों हीर? फरवा ने हंसते हुए हीर से पूछा, जो डरी सहमी फरमान को पकड़े बैठी थी। बिल्कुल नहीं, तुम लोग जानबूझकर डरा रहे हो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। हीर गुस्से से बोली। अच्छा हुआ हीर तुम मेरे साथ बैठी हो। फरमान हंसा। फरवा ने फारस की तरफ देखा और दोनों ने शाहजहान की तरफ देखा, जो खुद को काबू किए हीर और फरमान को इग्नोर किए बैठा था। हीर, अगर तुम यही सब करो तो मैं तो रोज़ तुम्हें ये मूवी दिखाऊंगा। फरमान हंसने लगा। आप बहुत बुरे हैं, मुझे डर लग रहा है। हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फरमान ने उसे करीब किया तो शाहजहान खड़ा हो गया और हीर को खींचकर उससे अलग किया। फरमान मुस्कुराते हुए फारस की तरफ देखा, वो भी मुस्कुराया। क्या बदतमीजी है ये? शाहजहान। फरमान खड़ा हो गया, आवाज़ नीची। शाह ने महज इतना ही कहा। हिम्मत कैसे हुई तेरी हीर को मेरे से दूर करने की? फरमान ने शाह को कॉलर पकड़ लिया। शाह ने ज़ोर से धक्का दिया कि उसे सीट पर गिरा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई हीर को छूने की? शाह ने उसे धक्के देकर गिरेबान से खींचते हुए ऊपर उठाकर कहा। हीर ने यकदम शाह की तरफ देखा। छोड़ें, क्या कर रहे हैं आप? हीर ने शाहजहान को रोका। तुम चुप रहो, चाहती क्या हो तुम? कल वो रहमान, तुम गई क्यों थी उसके साथ? बच्ची हो तुम क्या? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? अब ये खुलेआम थी, अपने पास बिठाया है, बेहूदगी कर रहा है और तुम खामोश बैठी हो। शाहजहान हीर पर चिल्लाया। तुमसे मतलब हीर का और मेरा मामला है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? फरमान गुस्से से चिंखा। हीर का और तुम्हारा मामला? तुम होते क्या हो? हीर की शादी हो गई है तुम्हारी, क्यों चिपक रहे हो इसे तुम अभी से? अच्छा तो क्यों सड़ रहा है ये बता, तू कौन है? हीर का चलो मैं तो कच्चा पक्का मंगेतर हूँ, तुम कौन हो? फरमान ने अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा। बस करें फरमान, आप क्यों बेवजह तमाशा कर रहे हैं? आप चलो, सब यहाँ से नहीं रुकना मुझे यहाँ। हीर ने फरवा का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगे। शाह ने हीर को रोका। एक बात याद रखना, प्यार में इस तरह चिपका नहीं जाता, ना बात बात पर हाथ पकड़ाया जाता है। खुद को खुद के हाथों जलील करवा रही हो तुम। शाहजहान इतना कहकर बाहर निकल गया और फारस आहान भी उसके साथ बाहर चले गए। हीर ने फरमान की तरफ देखा, जो गुस्से से शाह को जाते देख रहा था। चलो हीर यहाँ से। फरवा ने हीर का हाथ पकड़ा और सानिया भी उनके साथ बाहर चली गई। शाहजहान भाई गुस्सा मत करें, आप प्लीज़ छोड़ें इस बात को, फारस ने उसे समझाया, जो गुस्से में लाल हो रहा था। कि मीना है 1 नंबर का। आपने ठीक किया शाहजहान भाई। आहान आकर उनके साथ बैठ गया। आहान तुम बात बढ़ा रहे हो।
अब फारस ने अहान को गुस्से से कहा, मैं कोई बात नहीं बढ़ा रहा, कल की बात है। वो जो चक्कर हुआ हीर के साथ रहमान और मुईज़ ने जो किया, वहाँ लाने के लिए फरमान ने उन्हें कहा था। मैंने खुद अभी थिएटर में फरमान को रहमान को मैसेज करते देखा कि कल की ये बात कर रहे हैं दोनों। शाह जो नीचे देख रहा था चौंका और अहान को देखा। कसम भाई झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा। 2 थप्पड़ लग जाए अगर इस मुईज़ को और रहमान को तो सब बक देंगे। शाह उठा, भाई कहाँ जा रहे हैं आप? फारस भी उठा। शाह बगैर कोई जवाब दिए 30-30 कदम उठाता होटल के रास्ते की तरफ बढ़ रहा। अहान तो बाकियों को लेकर आ, मैं शाह के साथ जाता हूँ, उससे मैं कुछ कर न दे, फारस कहता हुआ शाह के पीछे चला गया। जबकि अहान वापस आ गया जहाँ हीर, फरवा और सानिया थी। फरमान कहाँ है? अहान ने आकर पूछा। पता नहीं, वो गुस्से में कहीं चला गया है, फरवा ने जवाब दिया। चलो हम वापस चलते हैं, मैंने टैक्सी रोक लिया, अहान ने कहा। पर शाह और फारस कहाँ हैं? सानिया ने पूछा। वो वापस चले जाएंगे, तुम चलो आप। सब टैक्सी में बैठ गए और वापसी के लिए रवाना हुए। वहाँ शाहजैन और फारस होटल पहुंचे। शाह तेजी से होटल में दाखिल हुआ और रहमान के कमरे की तरफ बढ़ गया। पैर मारकर शाह ने रहमान के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया, जहाँ मुईज़ और रहमान बैठे गप्पे मार रहे थे। रहमान डर कर उठा और मुईज़ की तो हालत देखने लायक थी। शाह ने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या चाहिए तुझे अब? रहमान उठा, फारस अभी अंदर आ चुका था। शाहजैन ने आसपास नज़रें घुमाई और फ्रूट्स की टोकरी में से चाकू उठाया। ये क्या कर रहे हो? रहमान उसे चाकू उठाते देखकर चौंका। बोल, क्या मकसद है तेरा? फरमान का मैं बार बार नहीं पूछूंगा, अगर तूने मुंह नहीं खोला तो फिर तो मेरे किसी काम का नहीं, मार ही डालूंगा। शाह चाकू उठाए उसके पास आया, जबकि मुईज़ भागने लगा जिसे फारस ने पकड़ लिया। क्या बकवास है, मैं कुछ नहीं जानता। रहमान पीछे होते दीवार से लग गया। ठीक है, फिर मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं तेरी। शाह ने चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। बताता हूँ, रहमान एकदम बोला। शाह ने उसकी गर्दन से चाकू थोड़ा नीचे किया। फरमान हीर को काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था और मैं भी देख रहा था। हमने प्लान किया था हीर को अकेले में। शाह ने ज़ोर का थप्पड़ रहमान के मुंह पर मारा। हिम्मत कैसे हुई तेरी ऐसा सोचने की? देखा कैसे तूने हीर की तरफ? हाँ, तेरी आंखें निकाल दूंगा आज मैं। बस अब कुछ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। पहले तो मैं प्रिंसिपल के पास नहीं गया, मैं नहीं चाहता था हीर का नाम आए और ये बात यूनिवर्सिटी में फैल जाए। अब तू सस्पेंड होगा। शाह उसे खींचते हुए बोला। नहीं भाई, मैं वही करूँगा जो बोलोगे। डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज के बाद हीर का नाम लेने पर शाह ने उसे बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैं आज के बाद उसके आसपास भी नज़र नहीं आऊँगा। फारस खड़ा शाह की मोहब्बत की शिद्दत देख रहा था, जो रहमान को हीर का नाम तक नहीं लेने दे रहा था। छोड़ दे भाई, अब मिल गई सज़ा इसे, इतना बहुत है। फरमान की सच्चाई हमें सबको बतानी पड़ेगी। फारस ने शाह के हाथ में उसके गिरेबान से निकाल कर कहा। इतने में दरवाज़ा खुला और फरमान अंदर आया। बाप रे बाप, तुझे पता चल गया होगा, इस कुत्ते ने पक दिया होगा। सब खैर, चल सुन, मुझे नहीं पता था तेरा और हीर का क्या चक्कर है। हीर तो मेरी है, तू मान या ना मान। एक बात, सिर्फ एक हफ्ते की में हीर की और मेरी शादी होगी और तू देखता रहेगा, फरमान ने शाह के सामने खड़े होकर कहा। फारस शाह का चेहरा देखकर ही खौफ से पीछे हट गया था। वो फरमान को आज जैसे मार डालता और वैसा ही हुआ। शाह ने उसे गिरबान से पकड़ लिया, मगर फरमान मुस्कुरा रहा था। मार ले, मैं तो ढीठ बंदा हूँ। उफ, हीर नाम सुनकर ही करंट लगने लगता है, मुझे फुर्सत से बनाई गई है बहुत। फरमान ने उसे मजीद भड़काया। शाह ने उसका सर दीवार में मारा, यहाँ तक कि उसका सर फट गया। और मार, हीर खुद मुझे मरहम लगाएगी तेरे सामने। हाँ। शाहजैन उसे नीचे गिरा कर पूरा गुस्सा उस पर उतरने लगा, किसी दीवाने की तरह वो उसे मार रहा था। भाई बस कर दे, छोड़ दे उसे। फारस ने शाहजैन को रोका। शाह ने फारस को धक्का दिया और वो पीछे दीवार में जा लगा। फरवा, हीर, अहान और सानिया भी टैक्सी से उतरे थे। वहाँ से गुजरते हुए कमरे में देखकर वो सब अंदर की तरफ भागे। छोड़ो उसे। शाह, फरवा और अहान ने शाह को पीछे खींचा और फारस ने भी आकर शाह को पकड़ा। हीर ने फरमान को नीचे से सहारा देकर उठाया और उसके मुँह और नाक से खून बह रहा था और वो लड़खड़ा रहा था। चट्टाक, हीर ने आज बगैर डरे शाह के मुंह पर थप्पड़ मारा। चाहते क्या तुम? क्यों जलील कर रहे हो तुम मुझे और फरमान को? खुश नहीं देख सकते तुम मुझे? किसी के साथ इंसानियत है तुम में? हीर उसे झंझोड़ते हुए उसके सीने पर मुक्के मारने लगी और चिंखी। हीर रुक जा प्लीज़। फरवा ने उसे रोका और पीछे खींचा। जलील करके रख दिया। आखिर चाहता क्या है, बताया ना। मेरे से प्रॉब्लम है, फरमान को मारने का मकसद क्या है? हाँ, जो मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा तुम उनके साथ भी यही सब करोगे। तुम्हें नफरत है ना मुझसे? मुझे भी नफरत है तुमसे, हीर ने उसे धक्का देकर कहा। वो खामोश खड़ा हुआ था। चल यहाँ से। हीर, फरवा उसे ज़बरदस्ती खींचने लगी। नहीं जाना मुझे। सानिया, फर्स्ट एड किट लेकर आओ।
अभी हीर ने हाथ छुड़ाकर सानिया से कहा। सानिया खामोशी से बाहर चली गई। शाह खामोशी से बाहर निकल गया। तुम पछताओगी हीर। बगैर सोचे समझे तुमने शाह को थप्पड़ मार दिया। फारस क्या कर शाह के पीछे चला गया। शाह ने खुद को कमरे में बंद कर दिया और कमरे का सब कुछ उलट पलट कर दिया। शाहजहान भाई दरवाज़ा खोलें प्लीज़। फारस बाहर दरवाज़ा पीटता रहेगा। नफरत है मुझे तुमसे। हीर शाह अंदर चिंखा और फारस के कानों में भी सुनाई पड़ा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप गुस्से में हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें भाई। शाहजहान ने दरवाज़ा खोल दिया। भाई प्लीज़ खुद को संभालें, हीर कुछ नहीं जानती, मैं फरवा को सब बता दूंगा, वो हीर को बता देगी, आप परेशान ना हो। मैं परेशान क्यों हुआ? हाँ, वो भी तो इस लड़की के लिए जिससे मैं बेइंतहा नफरत करता हूँ। कोई हद नहीं है मेरी नफरत की। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं, ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है मेरी और मोम की। आप कुछ मत बोलें, ये लें पानी पिए। फारस ने पानी का गिलास शाह की तरफ बढ़ाकर कहा। शाह ने गिलास को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया जिसके टुकड़े हो गए। भाई फारस ने शाह के कंधे पर हाथ रखा जिसे शाह ने एक झटके में हटा दिया। फरवा ने बाहर से फारस को इशारा किया और फारस बाहर निकल गया। क्यों मारा शाह ने फरमान को? फरवा ने उसे एक साइड करके पूछा। कितने घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था हीर के लिए। कल जो कुछ रहमान और मुइज़ ने किया वो फरमान के कहने पर किया। शाहजहान भाई को पता चला तो उसने रहमान को बहुत मारा और फिर फरमान आ गया तो शाहजहान भाई ने उसे भी। फारस ने अंदर देखा तो बात अधूरी छोड़कर अंदर भागा। फरवा ने भी अंदर देखा और जल्दी से शाहजहान की तरफ भागे। भाई छोड़े उसे। फारस ने उसके हाथ से गिलास के टुकड़े निकाले जिससे वो हाथ जख्मी कर चुका था। पागल हो गए तुम शाहजहान, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, इतनी डरपोक हो तुम। हीर को नहीं कह सकते थे कि तुम मोहब्बत करते हो, उससे किससे डरते हो तुम? ज़माने से या खुद से? फरवा ने उसके हाथ से गिलास के टुकड़े निकाल कर कहा। मोहब्बत? नफ़रत करता हूँ मैं उससे। गलत फहमी है तुम्हारी। फरवा मैं मोहब्बत कर ही नहीं सकता उस लड़की से। मैं चाहता हूँ उसे तकलीफ़ हो। उससे बड़ी तकलीफ़ उसके लिए क्या होगी कि उसकी शादी एक दरिंदे से होगी। मुझे खुश होना चाहिए था। वो मुस्कुराने लगा जबकि आंखों में सुर्ख रंग वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। तुम्हारी नफ़रत इस मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं है। तुम खुद से डरते हो शाहजहान, तुम्हें डर है। तुम खुद नहीं मान रहे कि तुम हीर से मोहब्बत करते हो तो दुनिया के सामने क्या खाक मानोगे? फरवा बोलती चलेगी। फारस फर्स्ट एड किट उठा लाया और शाह के हाथ को पकड़ा जबकि वो छुड़ाता हुआ बाहर निकल गया और जाते हुए हीर से टकराया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।